Am I audible, बेटा? Yes, sir. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर? सर प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। Anyone having any doubts, please ask. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में? लास्ट पार्ट क्या था? सर अराइल एलियम तक हो गया। एलिशन कर लिया। चलिए, डू यू हैव एनी डाउट्स पेपर आपका हुई? Otherwise, we'll continue the discussion of the aryl. मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से बेटा? Yes. Am I audible? Yes, sir. So I was saying, do you have any doubts in paper? Okay, so later on you can ask doubts. So we'll continue the discussion of the aryl halide. You write chemical properties. After this lecture, we'll start alcohols, ethers, phenols, and the first part will do phenols because it will be in continuation of the aromatic part. We did aromatic hydrocarbon, then here we are doing aryl halide, and just after this we'll do phenol. So it will be in continuation of that aromatic part. So as a whole, you will be able to deal with questions of aromatic compounds. Okay. So here you write chemical properties. Chemical properties. Basically for this aryl halide, if you talk about reactions, recall the substitution reactions SN1, SN2, right? If I draw the structure, you can see the lone pair, single, double, there is resonance. Because of that, what do we say? The CX bond is a partial double bond. Am I correct? So breaking will be difficult or easy? Difficult.
difficult. So that is why we immediately say that no SN1, SN2 reaction. First of all, you write this part. Not only this, a similar compound, that is vinyl halide. Here also no SN1, SN. Although we are not going to discuss this here, we will talk about reactions of this aryl halide only, but the same concept can be used for vinyl halide. First copy this and then we'll talk about two mechanisms which we have to study for aryl halide. One is SNAR mechanism and one is benzyne mechanism. Let me know if you have copied. Done, sir. Okay. First mechanism, you write SNAR mechanism. And write note here. Aryl halides that have electron withdrawing groups. Aryl halides that have electron withdrawing groups, such as aryl halides that have electron withdrawing groups, such as NO2. And believe me, most of the time they will ask questions related to this NO2 only. NO2, similarly, you can write CN, NR3 plus, COH, SO3H, CHO, COR, etc. Aryl halides that have electron withdrawing groups, such as these, attached at attached at ortho or para positions. Ortho or para position to halo substituent. Halo substituent can undergo nucleophilic reaction. Even under mild conditions. Even under mild conditions. Even under mild conditions. Have you all written the note? Yes, sir. Okay. I will give you few examples here to understand the note. Consider this.
If I say, reaction of NaOH, you will say no reaction. Then the same aryl halide, if you react with NaOH, but extreme conditions means forcing conditions, a very high temperature, a very high pressure, राइट एकदम घरेलू स्टाइल में अगर आप बोलो कि यहाँ पर वो रजिस्ट कर रहा था, बच्चे ने पढ़ाई करना शुरू नहीं किया, रजिस्ट कर रहा है कि हमको नहीं पढ़ाई करनी है, फिर उसकी पिटाई हो गई, बहुत सारी एनर्जी सप्लाई की गई, प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। ये एक तरीका है, तुमने कंडीशंस फोर्सिंग कंडीशंस लगा दी तो प्रोसेस हो गया, हाई एनर्जी आपने सप्लाई कर। दूसरा कोई तरीका है तो बोले प्यार वाला, तुमने क्या किया बेटा, NO2 ग्रुप लगा दिया एट पैरा पोजीशन। इफ यू सी सेम NaOH बट नाउ कंडीशंस यू कैन सी, टेम्परेचर देखिए डाउन हो गया, प्रोसेस हैपेंड। नाउ व्हाट यू डिड, वन मोर NO2, both ortho and para positions you have attached NO2. So even if you have heard about aqueous Na2CO3, hydrolysis of this gives NaOH. Even this boiling Na2CO3 can replace this Cl with OH, and temperature again down 130 degrees Celsius. So the conclusion part is, as you increase the number of electron withdrawing groups at ortho and para positions, then the reaction becomes easy. You attach one more NO2. In that situation, if 3 NO2 groups are present at ortho and position, the reaction is so easy. Even steam, you just add water, warm it, that we call as hydrolysis. The reaction happens easily. The reaction occurs easily, right? So I'm just wanted to show you that the effect of electron withdrawing groups at ortho and para positions. You copy these examples. Am I audible to all of you? Yes, sir. So, Oh, okay. Done, sir. And beta, Sir, 1 minute. What is written under H2O?
in the last reaction. Warm, WARM, and below that hydrolysis. Have you all copied? Yes, sir. Okay. So even if you take any other nucleophile, like if you take CH3ONA, and if I ask the reactivity order for this one, this one, this one, towards NaOCS3. What will be the reactivity order? Sir, decreasing. Very good. Precious, very good. So you can write this example also. I have written NaOCS3, yeah? NaOCS3 or CS3ONA. They can give in any form. Done, beta? 1 greater than 2 greater than 3. Those you have written, it's correct. Huh? Sure. Now we'll talk about mechanism. Mechanism. मेरी आवाज नहीं पहुंचे ना तो इमीडिएट मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देना था. Yes, sir. Step 1. Step 1 is actually attack of nucleophile on the carbon, same carbon which is connected with halogen. तो मैं यहाँ लिखूंगा attack of nucleophile on halogen bearing carbon.
This is the way. And since OH minus is attacking this carbon, the pi electrons will shift away from it. Right now. So what kind of intermediate we get? याद करो इलेक्ट्रोफिलिक जब हम करते थे सब्स्टिट्यूशन तो कार्बोकैटायन बनता था. यहाँ क्या बन रहा है बेटा? कार्बन आयन. और एक और खास बात, बनते ही ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. क्या विजुलाइज कर पा रहे हो बड़ा सिचुएशन? और NO2 क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ NO2? कोई बताएगा? react It stabilizes the carbon ion by its electron withdrawing nature. EW मतलब electron withdrawing nature. Simple, right? So this is nothing but a kind of addition. लेकिन एरोमेटिसिटी आपको रिस्टोर करना पड़ेगा अगर आप प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहते हो. तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेप में हेलोजन लीव्स. ठीक है, और बस उसको आप दिखा दो ऐसे. देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा, जब ये लोन पेयर एक न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा तो आउट ऑफ Cl एंड OH, Cl इज बेटर लीविंग ग्रुप, तो दैट Cl लीव्स. एंड व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट? इसको कहते हैं इप्सो प्रोडक्ट. व्हाट इज मेंट बाय इप्सो प्रोडक्ट? द सेम carbon with which leaving group was connected, now that nucleophile is connected. इसको क्या नाम देते हैं बेटा? IPSO, IPSO, IPSO product, IPSO, IPSO product. What is IPSO product? The same carbon gets nucleophile with which leaving group was connected. कॉपी कर लो बेटा इतना. If you have any confusion, you ask. Huh? Done, sir. Did I remove this beta? Everyone? अच्छा Yes, इसमें ये भी लिख लीजिएगा बेटा कि रेट इसका जो होता है ना
सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है दैट इज ARF मच ग्रेटर देन ARCl, ग्रेटर देन ARBr, ग्रेटर देन I। परहैप्स द रीजन ऑफ द रिएक्टिविटी इज कि F itself can stabilize this carbon ion, right? Now Cl is also electron withdrawing group। तो हेलोजन में बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर देखेंगे जो, क्योंकि यहाँ इसका कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, इंडक्टिव से ही चेक करेंगे तो F का बेस्ट इंडक्टिव है एंड वो स्टेबलाइज मैक्सिमम करेगा। परहैप्स इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। इसको जरूर लिखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर नॉर्मली I वाले का पहले होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इसमें बदल गया है आंसर। हाँ, तो प्लीज कीप इन माइंड। Done, sir. Okay. This was SNAR mechanism. Now you write another mechanism, benzyne. दो ही तरीके हैं जिससे आप एराइल हैलाइड्स की जो रिएक्शंस होती है वो दिखाते हो। सर यस बेटा। सर इप्सो प्रोडक्ट आप बता सकते हो फिर से और क्या रहता है? इप्सो प्रोडक्ट मैं बताता हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में। अगर आप देखो, जहां Cl निकलेगा जिस कार्बन से, उसी कार्बन पे अगर OH आया तो उसको इप्सो बोलते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन पे आता है तो उसको साइन, CINE बोलते हैं, साइन प्रोडक्ट। समझ गए? हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट मैकेनिज्म में साइन वाला भी बनेगा इप्सो के साथ साथ, इसमें केवल इप्सो प्रोडक्ट बनता है। आई होप सब समझ गए होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। जिस कार्बन से Cl लगा था उसी कार्बन पे OH आया, इसीलिए उसको इप्सो नाम दे दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसके लिए नोट लिखो बेटा। किसी को छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जरूर बोलिए, हाँ? ये नहीं कि उसको रखा हुआ है आपने डाउट्स मन में और फिर बाद में कंफ्यूज स्टेट में रह गए। लिखिएगा, those aryl halides that have no electron withdrawing groups, those aryl halides that have no electron withdrawing groups at ortho or para position, those aryl halides that have no electron withdrawing groups at ortho or para position under ordinary conditions, do not undergo nucleophilic substitution. Do not undergo nucleophilic substitution. However, they can be made to undergo. However, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution of halogen. However, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution of halogen by using a very strong base. Sir, made to undergo. However, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution of halogen by using a very strong base such as
सच एज, देखो अपने सिलेबस में 99.99% ये है, क्या है, NaNH2। अक्सर वो ऐसा लिख कर देगा NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, राइट। लेकिन इसके अलावा भी एक आध रिएजेंट है जो आप लिख सकते हो ऐसे एटसेट्रा करके लिख लो, ठीक है। और अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। याद रखना हम लोग 99.99% बस यही पढ़ते हैं, तो आपको हल्का फुल्का भी अगर लगे कि हमको अब ज्यादा हैंडल नहीं होता है तो खाली NaNH2 पे फोकस करना, ठीक। इसको लिख लो बेटा। Done, sir. क्या लिखा बेटा हर्ष आपने, डू नॉट अंडरगो? मेरे को समझ भी नहीं आपने क्या बोला। बेटा कहाँ पर हो तुम, क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे? क्योंकि कहाँ पर डू नॉट अंडरगो है? आप माइक यूज करो ना, दैट विल बी अ बेटर कम्युनिकेशन। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वरना आप फिर बाद में या तो जब मैं भेजूंगा वो लिंक तो आप देख लीजिएगा। मैकेनिज्म लिखिए बेटा। अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है और ज्यादा बड़ा रहता है तो या तो आप ग्रुप में किसी से बोल दो कि वो एक पिक्चर क्लिक करके भेज दें, है ना। नहीं तो फिर जब मैं लिंक भेजता हूँ तो आप उसके बाद देख लेना। स्टेप 1 में देखो बेटा, ये एक्चुअली स्टेज 1, दो स्टेजेस का मैकेनिज्म। देखो नाम क्या कहता है, बेंजाइन। इसका मतलब बीच में एक बेंजाइन जरूर बनेगा, और हमने बेंजाइन कई बार पढ़ा हुआ है, GOC में पढ़ा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में तो मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया ही होगा, बट बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है दोबारा अच्छे से करने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने हेलोजन लिख दिया, यहाँ H होना मस्ट है बेटा, यहाँ पर H होना मस्ट है। ठीक है, क्यों? अब अगर मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दूं तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी। अब तुमने इसमें डाल दिया बेस NaNH2, बेस का काम ही H को निकालना, वो इस H को लेके चला गया, तो यहाँ NH3 और प्लस Na प्लस लिख दो। ये स्पेक्टेटर आयन है, जो मेन चीज है वो ये है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन आयन 1। क्या नाम दे दिया बेटा, कार्बन आयन 1। हो सकता है स्टेज 1 का ये स्टेप 1 हो ही नहीं, मतलब ये डायरेक्ट मैं जो अब दूसरी चीज बनाने जा रहा हूं, हो सकता है डायरेक्ट वो मिल जाए। बट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मैंने ये दिखाया आपको कि देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करके वापस इस एक्स को निकाल देगा, और एक खास टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, एक सर्कल बनाओ और एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड यहाँ दिखा दो। इसका नाम क्या है, बेंजाइन। ये आपका स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है। अब इसमें स्टेज 2 क्या होती है? स्टेज 2 में बिकॉज उसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो याद करो ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता था उस पे, तो NH2 माइनस अब इस पे अटैक करेगा। और अगर NH2 माइनस ने ऐसे अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर NH2 माइनस ने अटैक यहाँ किया होता तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता। दो पॉसिबल आंसर्स इसके मिलेंगे, मतलब दो पॉसिबल प्रोडक्ट। एक बार पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और NH2 यहाँ कनेक्ट हुआ, स्टार यहीं पर है। और एक बार NH2 जो है
वो इस तरफ वाले कार्बन पे, और माइनस चार्ज यहाँ आ गया, स्टार यहीं पर है। फिर क्या करो, इसका प्रोटोनेशन, भाई अमोनिया तो प्रेजेंट ही है ना सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो वो अपना H दे देगा और ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया ऐसा। इसी तरह से यहाँ भी प्रोटोनेशन करा दो, केवल प्रोटोनेशन कराना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। अब इसकी खास बात, ये स्टार क्यों मैं बार बार लगा रहा था, ये दिखाने के लिए कि दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक में NH2 उसी कार्बन पे आ रहा है जिसपे स्टार है, और एक में NH2 दूसरे कार्बन पे जा रहा है, तो जिसमें उसी कार्बन पे आएगा उसको क्या नाम देते हैं? सो हाँ, EPSO, इप्सो प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं साइन प्रोडक्ट, CINE। So we are not only getting one, we are getting two products. दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में बनते हैं अगर वो सिंपल बेंजीन है तो। मैंने लेकिन दिखाने के लिए कि हाँ दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ये पूरा आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लो बेटा फटाफट। डन सर। राधे बेटा, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख देना बेटा, बिकॉज इसमें रिएक्टिविटी होने के लिए आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है आई को। ध्यान से देखो, तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी इस पे कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या लिख देंगे, ARI ग्रेटर देन ARBR,
ग्रेटर देन ARCL ग्रेटर देन ARF, ये लिख लो बेटा। डन। Yes, sir. अब इसमें एक दो नोट करके लिख लो। मान लीजिए ऐसा हो कि किसी हेलोजन के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ग्रुप लग गए, यानी कि H अवेलेबल नहीं है, तो क्या बेंजाइन बन पाएगा बेटा यहाँ पर? बोलो। नहीं। नहीं। नो बेंजाइन फॉर्मेशन मींस नो रिएक्शन। समझ गए? क्योंकि यहाँ कोई NO2 टाइप का ग्रुप तो है नहीं कि SNAR मैकेनिज्म हो जाएगी, तो केवल हो सकती है तो बेंजाइन मैकेनिज्म, और उसके लिए यहाँ ऑर्थो पे H होना जरूरी है। बेंजाइन नहीं तो बनेगा, नहीं बन पाएगा। BR के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, हाँ BR कहीं और लगेगा तो उसके बगल की पोजीशन। तो ये आप एक पॉइंट लिख लो, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। हटा दें? Yes, sir. गाइस एक और बात आप ध्यान रखना कि कहीं पर भी ग्रुप जो लगा होगा, अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रुप होगा ना, वो बेंजाइन मैकेनिज्म में ये ग्रुप केवल इंडक्टिव इफेक्ट का काम करता है, रेजोनेंस का काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता वो ध्यान से सुनो भाई। माइनस यहाँ हो सकता है, कार्बन आयन जो इंटरमीडिएट उसको ध्यान से देखो, माइनस यहाँ हो सकता है, माइनस यहाँ हो सकता है। क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो कार्बन आयन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कार्बन आयन 1, कार्बन आयन 2, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। मैंने यहाँ हेलोजन लगा दिया, मैंने यहाँ हेलोजन लगा दिया, मैंने यहाँ हेलोजन लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो ग्रुप है, ये बिकॉज इसको देखोगे तो ये ग्रुप कुछ भी कर ले, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज है, ऑलरेडी सर्कल अंदर होने का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर उसमें चला जाएगा, तो ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ वर्क करेगा। तो जी कैसा केवल वर्क करता है? एज इफेक्ट ऑफ जी is only as inductive, no resonance। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऑल ग्रुप्स कैसे हो जाएंगे बेटा? एक्सेप्ट, याद है? बोलो, याद करो, मैंने रटाया था इस स्टेटमेंट को, कैन यू रिकॉल? मैंने बोला था रट्टा मान लो कि सारे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बाय इंडक्टिव, खाली क्या छोड़ दो? एल्काइल ग्रुप और ग्रुप विद नेगेटिव चार्ज। कितना आसान तरीका है, ठीक है। ये पहले कॉपी कर लो, एक एग्जांपल आपको देता हूं।
डन सर। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल है ये, जानते हो इसको कहते हैं ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका रिएक्शन करा दो आप NaNH2 अमोनिया के साथ, या फिर एक कंपाउंड दूसरा जिसका नाम है मेटा मेटा ब्रोमो एनिसोल, उसका रिएक्शन NaNH2 अमोनिया से करा दो, मेटा ब्रोमो एनिसोल। होता क्या है, दोनों केसेस में एक ही आंसर मिलता है। तो ऐसा कैसे, दोनों में सेम आंसर कैसे मिल गया? तो उसका रीजन क्या है? पहली चीज, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई इस Br के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो H जाएगा, यहाँ बेंजाइन आएगा। क्या कॉमन सेंस लगा पा रहे हो ये चीज? भाई एक ही तरफ तो H है, वही निकल सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड या जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आएगा वो वहीं पर आएगा। अगर इसका भी बेंजाइन सेम आ जाए तो फिर आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। इंटरमीडिएट सेम है तो प्रोडक्ट सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसको देख लो, इसके पास दो H है, आप क्या करो, दो कार्बन आयन बना कर देखो। एक कार्बन आयन बनाओ आप जो कि यहाँ पर हो, और एक कार्बन आयन आप बनाओ जो कि यहाँ पर हो, दोनों तरफ के। तो बताइए OCH3 अगर इंडक्टिव से विड्रॉइंग है तो किसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा? बताओ, बोलो बेटा, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? फर्स्ट वन। First one, फर्स्ट वन को। क्यों? ortho position. मेरे पास में, ये बोलो, पास में, क्लोजेस्ट, somebody said closest, वेरी गुड। तो इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना? तो ये ज्यादा स्टेबलाइज, तो मेजर प्रोडक्ट जब आप बोलोगे तो इसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से थोड़ी ना मिलेगा। और इसकी तरफ से बेंजाइन क्या मिलेगा? बस आप इसको लगाओ, इसको हटा दो, ये लो। क्या नहीं लगता है आपको ये बेंजाइन और ये बेंजाइन सेम है? तो आप बोलोगे सेम इंटरमीडिएट, तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन सेम में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तो आप इनमें से, इन दोनों से ही आप देखोगे तो दो इंटरमीडिएट्स आपको मिलेंगे NH2 अटैक होने के बाद, जिसको बोलेंगे कार्बेनाइन 2। एक यहाँ NH2 लगाओ और माइनस यहाँ, दूसरा माइनस यहाँ लगाओ, NH2 यहाँ लगाओ, दो। अब बताओ बेटा, इन दोनों कार्बेनाइन 2 में, ये भी कार्बेनाइन 2 है मेरे लिए, ये भी कार्बेनाइन 2 है, बताइए कौन सा कार्बेनाइन 2 आपको लेना चाहिए? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। और ये रिजेक्ट कर दोगे बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि OCH3 इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। अब इसको प्रोटोन कर दो, प्रोटोनेशन मतलब, देखो मिल गया ना पैरा मेटा पोजीशन पे आपको NH2, यही तो आंसर मिल रहा है। कॉपी कर लो बेटा। दो चीज हमने एक्सप्लेन की, एक सेम प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है और मेटा पे NH2 क्यों लग रहा है, दो चीजें एक्सप्लेन की है। कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर बोलो। सर NH2 मेटा पोजीशन पे क्यों लगता है, वो वाला पार्ट फिर से समझा सकते हैं? NH2 मेटापोज यहाँ पर ना, तो यहाँ यहाँ देखिए दो पोजीशन है, NH2 दोनों में से किसी एक जगह लगेगा। अगर तुमने NH2 यहाँ लगाया तो माइनस वहां चार्ज आया, और अगर NH2 ऊपर वाले यहाँ लगाया तो उसके नीचे वाले में माइनस आया। हाँ सर, OCH3 क्लोज वाले माइनस को हाँ सर, स्टेबलाइज समझे करेगा। समझ गया ना? समझे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम लोग लिख लो, है ना, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो फिर 2 महीने बाद डाउट्स आएगा ही आएगा तुम्हारा, है ना। तो हाँ सर, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, इससे सब लोग लिखो जरूर। और जिन्होंने कर लिया हो ना, वो बुकलेट निकाल ले बेटा। मेरे पास ख्याल से सबके पास बुकलेट है। हाँ सर। जरा बुकलेट निकालिएगा, उसमें एक पैराग्राफ है 17 करके, क्वेश्चन नंबर 17 वाला पैराग्राफ है गेट इक्विप्ड में। उसके जरा 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20। फटाफट उनको अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान है, दिमाग लगाइएगा। बेंजाइन मैकेनिज्म है, तो इंडक्टिव से विड्रॉइंग चेक किया जाता है, रिलीजिंग चेक किया जाता है। और SNAR है, तब तो वो रेजोनेंस वाला विड्रॉइंग होना चाहिए। जानवी बेटा इज आस्किंग सेंड बुकलेट। सर तो बेटा आप किसी से बोलो, ग्रुप में वो भेज सकता है। मेरे पास तो हार्ड कॉपी है। मेरे ख्याल से सबको हार्ड कॉपी मिल जानी चाहिए अब तक। सर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना? क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 बेटा, ये 4 क्वेश्चन बोला है। गेट इक्विप्ड का पैराग्राफ है बेटा, पैराग्राफ है। उसमें 17, 18, 19, 20 दीज आर द 4 क्वेश्चंस ऑफ पैराग्राफ। गेट इक्विप्ड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी, एक्सरसाइज 3 है ये। वो गेट इक्विप्ड जैसा ही है, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का है। गेट इक्विप्ड जैसा ही एक्सरसाइज वो बना दिया मेरे ख्याल से उन्होंने। इसको गेट इक्विप्ड लिखना था, होम असाइनमेंट 1, होम असाइनमेंट 2, गेट इक्विप्ड। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 हो गया। देखो सब लोगों को आ जाना चाहिए बेटा क्वेश्चन यार।
वेरी गुड बेटा। ईशान वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड। एक साथ सारे आंसर सब लोग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एक एक करके नहीं लिखें। और हो गया हो तो बोलो बेटा, डिस्कस कर लें हम लोग। वेरी गुड प्रशस्त, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड। Somebody has written very good. Sanskriti. डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया। देखो, अगर आप 17 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखोगे तो 17 क्वेश्चन नंबर में वो आपको पैरा क्लोरोटोलुइन बोल रहा है, पैरा क्लोरोटोलिन, और उसका रिएक्शन KNH2 के साथ है ना। तो इसमें सबसे पहले तो बेंजाइन बनाना पड़ेगा। आपके पास बेंजाइन आप कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ एक जैसा ही मिलेगा। ये बेंजाइन मिल गया है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, NH2 माइनस जब अटैक करेगा तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक कि वो अटैक जो है यहाँ करे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कि वो अटैक इस कार्बन पे करे और पाई इलेक्ट्रॉन उधर जाए। तो एक मैं अगर बनाऊंगा कि NH2 यहाँ लोन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैं बनाऊंगा दैट इज माइनस चार्ज यहाँ पर, NH2 यहाँ पर, CH3 रिलीजिंग ग्रुप है। बेटा बताओ किसको वो डिस्टेबलाइज ज्यादा कर देगा, कौन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते? फर्स्ट वन। ये वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइनस चार्ज क्लोज है और ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेबलाइज, दैट इज वाई ये वाला आंसर देगा आपको। और ये जब आंसर देगा, प्रोटोनेशन होने के बाद आपको मेटा पोजीशन पे ऐसा दिखाई देगा। किसी को कोई डाउट है बेटा? और 18th वाला मैंने अभी भी डिस्कस किया है, परहैप्स 18th अभी डिस्कस किया है क्या, मतलब इस तरह का तुम कर सकते हो, है ना। 18th डेफिनेटली तुम्हें आ जाना चाहिए बेटा। 17th का बी हो गया, 18th का ए आंसर होगा। 17th का बी, 18th का ए। किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा। और 19 तो खाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके पास ज्यादा SNAR मैकेनिज्म होगा उसमें ये हाईलाइट कर लेना, SNAR। और 20th में हर किसी के पास ऑर्थो पोजीशन पे H है या डी फॉर डिटेरियम है, वो भी निकल जाता है। हाँ, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन H भी निकलेगा और डी भी निकल सकता है, तो उसका डी हो जाएगा। 19th का ए, 20th का डी लगा। किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी कंफ्यूजन इन दीज 4 क्वेश्चंस?
These 4 questions are very very important. ये 4 questions करने से समझ लो तुम्हारा एराइल हैलाइड की रिएक्शंस के questions हो गए. That is enough. ये नोट्स पे कॉपी जरूर कर लेना बेटा. हाँ? चलिए आगे बढ़े. Yes, sir. एक कंपाउंड है जिसका जो क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकता हूं मैं आपको, वो ऐसा एग्जाम में आ सकता है. ये इसको ये जो कंपाउंड इसको क्लोरल कहते हैं. ये बेटा क्लोरोबेंजीन है. इनकी रिएक्शन करके H2SO4 की प्रेजेंस में कंपाउंड बनता है जो एक बड़ा पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर इंसेक्टिसाइड. इसका नाम DDT है. ठीक है. इसको कहते हैं डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और इथेन. डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन. ठीक है. डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन. ये हो गया. अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, बहुत इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. इसकी रिएक्शन कैसी होती है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये जो कार्बन है कौन सी साइट हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक साइट, है ना. और अगर मैं खाली बेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं, खाली बेंजीन की बात करूं तो इस पे अटैक होता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नहीं सब्स्टिट्यूशन. तो ये खुद क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल. हाँ, तो इसका पैरा पोजीशन है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है. तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट. अब न्यूक्लियोफिलिक साइट विल इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक साइट. कितना आसान है. और CCl3 है, CH है, इसको अटैक कराओगे जब ऐसे तुम, और इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को खिसका दो और बाद में OH बन जाएगा. फिर OH का प्रोटोनेशन कर दो, ऐसा ये निकल जाएगा. मानते हो कि नहीं? वहां क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोकैटायन. और कार्बोकैटायन बनते ही फिर से बेंजीन रिंग उस पर अटैक कर देगी, क्योंकि बेंजीन का काम है इलेक्ट्रोफिलिक उस पर अटैक कर देना. फिर से ये यहाँ पर अटैक होगा. आप समझ लेना बेटा सब कुछ. हाँ, मैं यही इसी पेज में सब कुछ जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि तुम इधर उधर भटक ना जाओ. ये आपका फाइनली DDT बन गया. ठीक है. कहने का ये मतलब है, इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा था किसी टाइम पे, अब ये 2 क्लोरोबेंजीन लग जाएगी. कॉपी कर लो बेटा इसको. आपका इसी वीक में बेटा ये MT है क्या? यस सर. ओके. तो आप सॉल्व भी कर लेना बुकलेट को. और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप जरूर पूछ लेना, है ना. एल्काइल हैलाइड खत्म ही है, ये सब तो हम एक्स्ट्रा पार्ट समझ लो अब कर रहे हैं. इसके बाद ये मैं ना भी आपको पढ़ाऊं तो ऐसा कुछ कहीं बुक में आपको ये सब नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं उसको हमको थोड़ा सा कर लेना होता है. इससे कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में ज्यादा होगा.
राइट इट आउट लेक्चर, अरे वाह वेरी गुड बेटा, तब तक आप फिनिश कर लेना, जितना भी कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सारा ही कर लो, जितना भी आपको फिनिश होता है और वो आप जरूर, मैंने भी क्वेश्चंस बीच बीच में तुमने सब कराए हुए हैं, और ये ज्यादातर एल्काइल हैलाइड जो है ना वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है, तो तुमने पहले भी किया हुआ है तो इतना कोई टेंशन नहीं। डन बेटा, शैल आई रिमूव दिस पेज? Just a second. ओके, Yes, sir, done. अब इसमें ज्यादातर रिएक्शंस तो हो ही गई हैं। एक देखो, ये मेरे ख्याल से वर्ज रिएक्शन वगैरह, सॉरी वर्ड फिटिक रिएक्शन अगर आप याद करो वही हमने कर लिया है। वर्ड फिटिक रिएक्शन भी हमको आता है, एक उल्मन रिएक्शन करके उसको भी लिखो, हो सकता है कहीं पर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए। इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन, वर्ज रिएक्शन, जैसे जो जो भी हमने किया उसमें दूसरा मेटल लेते हैं, इसमें कॉपर मेटल ले रहा हूँ, कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दो बस, जैसे आर आर बनाते थे ना वर्ज रिएक्शन, एग्जैक्टली वैसे। हमें इसका कुछ और नहीं करना है, बस रिएक्शन लिख के रख लिया है भाई, नाम आ गया पता चला और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये तो वर्ज रिएक्शन जैसा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको जस्ट कॉपी करो, दैट इज इनफ। Done, sir. In our syllabus there is one compound called haloform. हेलोफॉर्म में जो सबसे पॉपुलर है जो तुम लोगों ने रेगुलरली सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, तो वो ये है ना। ये जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोम फॉर्म होते हैं, ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड, और इसको ये येलो सॉल्ट CHI3 को कहते हैं येलो सॉल्ट, ठीक है। इसमें एक एक्चुअली है हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसको आप प्रिपरेशन भी कह सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म।
प्रिपरेशन ऑफ हेलो, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो हम कर रहे हैं। इसके बाद हेलो फॉर्म का रिएक्शन एक दो करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म विच इज नथिंग बट एक्चुअली एक हम लोग पढ़ते ही पूरे सिलेबस में 3 चैप्टर है जहां पर इसको पढ़ेंगे। एक अभी पढ़ रहे हैं हेलो फॉर्म टेस्ट, एक एल्कोहल्स में आता है, यही चीज है, थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और क्वेश्चन ये चलता है। हेलो फॉर्म टेस्ट ये इतनी जगह आता है, इसका मतलब आप समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो फॉर्म टेस्ट रटा होता है हर बच्चे को, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होगा ये नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई अच्छी रैंक लेकर आए। ये लगभग हर बार एग्जाम में आता है हेलो फॉर्म। ठीक है, तो इसको हेलो फॉर्म टेस्ट सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स गिव हेलो फॉर्म टेस्ट ये लिखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, तो उसका आंसर है जिस किसी के पास भी CH3 हो और वो या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, वो सारे कंपाउंड्स हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, या फिर एल्कोहल भी दे सकता है, इसीलिए तो एल्कोहल में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा इस टाइप का एल्डिहाइड कीटोन या फिर इस टाइप का एल्कोहल। एक तो ये चीज हो गई। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड? व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड? तो रिएजेंट में एक तो हेलोजन यूज करते हैं, Br2 यूज करते हैं मोस्टली, Cl2 यूज करते हैं, I2 यूज करते हैं। I2 यूज करेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो उसको बोलेंगे, प्लस एल्कली। एल्कली में आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, CaOH ट्वाइस ले सकते हो। अब इसकी खास बात यह है कि कई बार इन दोनों के बदले आपको एग्जाम में NaOCl या फिर NaOI इस टाइप के कंपाउंड आपको दे देगा, या फिर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर सुना है बेटा, CaOCl2। तो ये रिएजेंट है। अब प्रोसेस कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. ये कॉपी नहीं किया ना, इसको भी कर लो।
Then, sir. सर बोलो बेटा। सर आपने CaOCl2 का नाम क्या बताया? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ सर। ठीक है, सर 1 मिनट। ओके। डन सर। देखो, 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। स्टेप बोलो, स्टेज बोलो, जैसा भी वो, इसको तो बाद में डिटेल में करेंगे हम लोग। इसके पास ये 3 एच होने जरूरी है बेटा, इसीलिए इसको अल्फा बोलते हैं कार्बन। यानी एल्डिहाइड कीटोन के पास ये 3 एच होने जरूरी है। अगर मान लो कि ये एल्कोहल होता है, तो एक्चुअली पहले जो हेलोजन होता है वो इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको ऑक्सीडेशन समझ लो। NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो पहले ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर जो हेलोजन है OH माइनस की प्रेजेंस की वजह से तीनों H निकाल करके उसके बदले 3 हेलोजन लगा देता है। इतना अभी के लिए माइंड में रखना है। और फिर क्या हो जाएगा, ये एसिड डेरिवेटिव की तरह काम करेगा। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन कैसी होती है बेटा, सब्स्टिट्यूशन वाली। अब जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये इसको लीव करा देगा, यानी कि एक तरफ एसिड बनेगा, लेकिन बेस की प्रेजेंस की वजह से वो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ एसिड। और साथ में क्या बनेगा, CH3 माइनस, जो प्रोटॉन लेकर के क्या बन जाएगा, सी। इसी को तो कहते हैं हेलोफॉर्म। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या हुआ? हेलोफॉर्म प्रिपरेशन, इसको नोट कर लो बेटा। Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्ट ऑफ द एसिड लिखा है बेटा, किसी ने पूछा है। चल, ये हो गया। अभी 2-3 रिएक्शंस हैं जो इसका हेलोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म बेसिकली हम लोग उसकी रिएक्शन के टर्म्स में बात करेंगे। तो इसमें एक रिएक्शन है बेटा इसकी सिल्वर के साथ, ये हमने पहले भी किया हुआ है। बिल्कुल समझ लो वर्ज रिएक्शन है कि CH को आमने सामने 2 मॉलिक्यूल बैठा दो, एक Cl हटाओ, एक बॉन्ड लगाओ, एक Cl हटाओ, एक बॉन्ड लगाओ, एक Cl हटाओ, एक बॉन्ड लगाओ। इस तरह से 3 बॉन्ड इस तरह से लग जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो काइंड ऑफ वर्ज रिएक्शन, इसको नोट कर लो बेटा। एक ये रिएक्शन हो गई। फिर एक इसकी रिएक्शन है CHCl3 की जिंक HCl के साथ, एल्केन बनाते थे ना जिसको,
याद करो RCl से RH बनता था, तो अगर एक्सेस में है तो ये CH4 बना देता है उसी रिएक्शन की तरह, और नहीं है तो बीच में शायद ये बन जाता है। वो डिपेंडिंग अपॉन क्या पूछा है, कैसे पूछा है, उसके हिसाब से आप लिख देना। इसको कॉपी कर लो। ये एम्प्टी बेटा आपका लास्ट एम्प्टी है, इसके बाद भी एम्प्टी होगा। मालूम नहीं सर। अच्छा, आपको वो टाइम टेबल ऐसा टेस्ट का नहीं मिला है क्या कोई, जिसमें ये आप एंटी की बात नहीं है। मॉक टेस्ट वगैरह लिखा होगा या AITS लिखा होगा? नहीं सर। नहीं मिला है क्या? ओके, मिलेगा। हो सकता है एक और एम्प्टी हो, उसके बाद आपके पार्ट AITS वगैरह शुरू हो जाएंगे। डन सर। ओके, इसके बाद इसका एक क्लोरोफॉर्म का पॉपुलर टेस्ट है जो एमाइन में आता है सिलेबस में, उसको बोलते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट। तो आपको यहाँ कहीं भी मिल सकता है, उसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, KOH लेते हैं, एंड द टेस्ट इज एक्चुअली फॉर प्राइमरी एमाइन। एक अनप्लेजेंट स्मेल वाला कंपाउंड बनता है जिसको RNC लिखते हैं, एल्काइल आइसोसाइन। फाउल स्मेलिंग इसको बोलेंगे, अनप्लेजेंट स्मेल। और बाकी क्या मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, KCl H2O लिख सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के लिए याद रखना। इसको कार्बिलामाइन टेस्ट कहा जाता है, ये लिख लेना एक। और एक बहुत पूछा तो नहीं गया अभी तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। HNO3 के साथ है क्लोरोपिक्रिन बोला जाता है इसको, CCl3.NO2 करके लिखते हैं, डॉट ना भी डला हो तो भी चलेगा। क्लोरोपिक्रिन ये भी इंसेक्टिसाइड है बेटा, ये लिख लो। डन सर। एक आप लोग ने ये पक्का सुना ही होगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो सर्जरी में कई बार क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और हैंकी वगैरह में उसको लगा करके जो चोर लोग हैं वो भी बेहोश करते हैं, ये सब सुना होगा। और उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो अगर एयर और लाइट की प्रेजेंस हो गई तो एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है, फॉस्जीन गैस जिसको बोलते हैं, पॉइजनस।
इस पर बेस्ड आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको हम लोग डार्क बॉटल में बंद रखते हैं, डार्क ब्राउन बॉटल हो या ब्लू बॉटल हो उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। और इसमें इथेनॉल भी डाल के रखते हैं 1%, तो उसका जो डिकम्पोजिशन उसको स्टॉप करता है। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं एक नोट लिखाता हूँ। Done, sir. तुमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. लिखिएगा, in the presence of air and light, in the presence of air and light, chloroform converts, in the presence of air and light, chloroform converts to carbonyl chloride. That is a poisonous gas. So it should be kept in a closed dark brown or blue bottle. It should be kept in a closed dark brown or blue bottle. Ethanol at around 1% is also added to stop the decomposition of chloroform. To stop the decomposition of chloroform. लिख लिया बेटा सबने? एक ये लास्ट रिएक्शन है, इसको कॉपी कर लो, फिर फिनॉल के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद आप रेस्ट करो। इसको क्लोरीटीन कहते हैं, क्लोरीटोन, सॉरी। Somebody is saying, can you repeat the after close? मैंने बोला closed dark brown or blue what? इसको कॉपी कर लो बेटा। सर नाम क्या लिखा है? क्लोरीटोन, CHLORETON, क्लोरीटोन। Done. इसके बाद अब आप हेडिंग डालिएगा, फिनॉल्स, एल्कोहल्स, ईथर्स, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल से। एक छोटा सा नोट, yes, this is new chapter, this is new chapter बेटा। तो ये जो सेट ऑफ 3 चैप्टर्स है, फिनॉल्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, इसमें सबसे पहला पार्ट वी आर गोइंग टू डू फिनॉल्स। जैसे एल्काइल एराइल हैलाइड 2 सेट्स का वो था, इसमें ये 2 चैप्टर्स का सेट था, ये 3 चैप्टर्स का सेट है, फिनॉल्स, एल्कोहल्स एंड ईथर। सब में एक एक ऑक्सीजन लेके हम लोग चलेंगे।
लिखना फिनॉल्स के लिए एक छोटा सा नोट। Compounds where OH is directly attached. Compounds where OH is directly attached with benzene ring. Compounds where OH is directly attached with benzene ring. उनको आप फिनॉल्स कहते हो, ये माइंड में रखना। And these are classified as primary, secondary, tertiary phenols. These are classified as primary, secondary, tertiary phenols, depending upon one, two, or three OH groups, depending upon one, two, or three OH groups attached to benzene ring. Attached to benzene ring. ठीक है, अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बना लो। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये मैं शायद ये सब तो फिनॉल तो आप बिल्कुल ही बेसिक है, सब जानते हैं। इसके अलावा वन स्ट्रक्चर वी कॉल एज ऑर्थोक्रिसॉल। नॉर्मली मैं नॉमेनक्लेचर के टाइम पे भी देता हूँ, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पास डेफिनेटली होंगे और वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। पैराक्रिसॉल, फिर इसके बाद अगर मेटा पोजीशन पे लगा दोगे सो इट विल बी कॉल्ड मेटाक्रिसॉल। ठीक है, इसी तरह से कैटेकॉल, दो OH रहता है बेटा, Ca है, हाँ, कैटेकॉल। फिर इसके बाद जो दो OH है वो आप रिसोर्सिनॉल इसको बोल दोगे, रिसोर्सिनॉल। फिर दो OH जो हैं वो पैरा पोजीशन पे लगा दो तो हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन बोलते हैं या फिर क्यूनॉन, एक ये आप लिखिएगा। ठीक है, एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड, दो पॉपुलर बहुत है, सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड। पक्का आपने पहले भी सुना होगा, सैलिसिलिक एसिड, और अगर COH के बदले CHO कर दो तो इसको बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिल करो एल्डिहाइड लिख दो आगे, हाँ, सैलिसिल और फिर आगे एल्डिहाइड। कॉपी कर लो बेटा इसको। सर वो कैटाकॉल के बाद क्या है? कैटेगॉल के बाद रिसोर्सिनॉल, RESORCINOL। सर कैटेकेवल की स्पेलिंग क्या है? कैटेगॉल CATECHOL।
डन सर। ओके ना। अब एक कंपाउंड है जो बड़ा पॉपुलर है, पेन किलर के फॉर्म में उसको हम लोग यूज करते हैं, एस्पिरिन। इसका स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब रिएक्शंस के थ्रू। एस्पिरिन, इसका यूपीएससी नेम भी आप लिख लो, इसको एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको दूसरा नाम भी मिलता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये भी आप लिख लो, है ना। और एक सैलोल करके है, इसी टाइप का एक कंपाउंड है ये, दिस वी कॉल एज सैलोल। फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। और एक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन करके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो बिल्कुल आपको लगेगा एकदम ऐसा कि वो एस्पिरिन है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस दिखाई देगा। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं इसको। कॉपी कर लो बेटा। तीन चार और स्ट्रक्चर्स दूंगा, फिर आप लिस्ट कर लो। प्रिपरेशंस इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। याद रखना, वी हैव स्टार्टेड अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, बट हमने फिनॉल से शुरू किया, ये माइंड में रखना। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको दिया कि कंटिन्यूएशन में जब सारे एरोमेटिक वाला होगा, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। अभी अभी आपने जो रिएक्शन है एराइल हैलाइड वाली फिनिश की है, इवन डाउस प्रोसेस, उसमें अभी अभी NaOH वाला रिएक्शन जो देखो ना, SNAR मैकेनिज्म वगैरह सब फिनॉल ही तो बन रहा था। डन सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा। Yes, sir. Done? This is beta naphthalene. इसको लिख लो। एक कंपाउंड है जो परहैप्स आपने वीडियोमेट्री में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पायरोगैल। इसको बोलते हैं फ्लोरो ग्लूसिनॉल। ये लिख लो, दैट इज इनफ। एक और चाहिए तो इसमें लिख सकते हैं, छूट रहा है वो।
1,2,4 hydroxyquinol. सर यस बेटा। सर कोई ऐसा जेई एस्पिरेंट 4.5 मंथ्स में जेई मेंस क्लियर कर सकता है? ये मेंस Yes, कर sir. सकता है, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। मतलब उसमें जो अगर है, फिर अगर थोड़ा बहुत 11 का बैकलॉग हाँ तो 12th के पोर्शन ज्यादातर आते हैं। आप मानकर चलिए कि जो तुम्हारा पूरा जेई का सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, उनमें 60-70% पोर्शन 12th स्टैंडर्ड का होता है। तो इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट पोर्शन, तो बहुत चांसेस है कि आपका अच्छा आ जाएगा मार्क्स। बहुत सारे बच्चे जो पर्सनल ट्यूशंस के लिए भी बात करते हैं, वो सब इसी तरह से मैनेज करते हैं बात। ठीक है, चलो ये सब कॉपी कर लिया बेटा। यस सर। Yes, sir. चलो आपने इस बुकलेट को फिनिश करना, और फिर जो डाउट सेशन होगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है।